Hello friends, today we are going to study the second chapter of Flamingo class 12th, that is Lost Spring. It has subtitle also, that is the stories of stolen childhood. Firstly, I want to discuss about the title, that is the Lost Spring. A spring which is lost. The spring which is lost. Spring is a season that is the very pleasant, joyful and beautiful season in the seasons. So as it is the symbolic, that is the spring, that is spring, the same thing in our life. Our childhood is the spring of our life, because this is a very joyful, very pleasant, and this is without worry, without any tension. So in this is we find out it is like our spring of our life. The same thing is mentioned in this chapter, written by, it has two parts. First part is written by, both parties written by Anis Jung, but in the first part, the story of Delhi near Simapuri periphery, and the second is about Firozabad, the famous city for Bengal. So today in this video only we will study about the first part, that is Lost Spring by Anis Jung. Anis Jung was born in Raulkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Now you can understand she is an Indian writer. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and the columnist for major newspaper in India and abroad, and has authored several books. So some books like Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditional which condemn these children and life to the exploitation. This is the main thing we are going to discuss. She is talking in the grinding poverty and tradition which condemn. Earlier I told that it has two parts. So in the first part, she is going to describe the grinding poverty and the tradition. That we find out that in our country there is tradition of work. If grandfather is working the same business, what happens? Father is also going in the same business, and after that son is also going to do the same business, and for the next generation is indulged in the same business. Why? Because they feel secure in that job. They are not going to do any new thing. That is mentioned in the second part of this chapter. So in the first part we will discuss about a boy, that boy's name is that Sahib Alam. Shahab Alam is the name of that boy, and we are going to study about that. He is a rag picker. He is a rag picker, and the tradition of rag picking and the grinding poverty of his family, and how they are indulged in this work, and how they are deprived from the basic thing, and you can say that it is the child labor is going on in this chapter, and how the writer Anis Jung mention in this chapter about the childhood of Shahab Alam, and after that in the second part we will see the childhood of the life of a Bengal maker, a boy whose name is Mukesh. So let us go and study first part. The title is Lost Spring, but I told that there is two part. So first part's title is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage.
समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है कहाँ, कूड़े में। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. The writer in his junk says that I asked a boy whose name is Saheb that why do you do this? उसने पूछा, राइटर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? किससे पूछा? उस साहब से पूछा जो उसे प्रत्येक दिन मिल जाता था पड़ोस में, कूड़ो करकट में कुछ ढूंढता हुआ, इकट्ठा करता हुआ, कलेक्ट करता हुआ उसे मिल जाता था। उससे पूछा उसने, वाई डू डू दिस? ऐसा तुम क्यों करते हो? साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ा था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका घर कहाँ था? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। इट मीन्स ही बिलोंग्स टू बांग्लादेश। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसे अपने घर को छोड़े या घर की याद बहुत ज़्यादा दिन नहीं, नॉट ए डिस्टेंस मेमोरी मीन्स ज़्यादा दूर की मेमोरी नहीं है, अभी हाल की घटना है, जल्द की ही घटना है उसके लिए। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। He is describing, means Sahib is telling it. It is mentioned by in his jung now that what that there were storms which swept away the field and the homes. ये आंधी तूफान ने क्या कर दिया? उसके घर और उसके खेतों को सब नष्ट कर दिया। His mother tells him, उसकी माँ ऐसा बताती है कि उनका घर ढाका बांग्लादेश में हुआ करता था, लेकिन आंधी तूफान ने उनके घर को, उनके खेत को सब नष्ट कर दिया। और यह अभी बहुत ज़्यादा दिन की मेमोरी नहीं, याददाश्त नहीं है, ऐसा कहना था साहब का। और बताता था कि उसकी माँ ऐसी बताती थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। यही कारण है कि अब वो इस बड़े शहर में कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ ढूंढ रहे हैं मीन्स दे आर सर्चिंग इन द गार्बेज, दे आर सर्चिंग गोल्ड। गोल्ड इज नॉट गोल्ड, gold is symbol of rupee, gold is the symbol of the livelihood, gold is the symbol of that money with which they are surviving their life. So that is gold here mentioned. यहाँ सोने से तात्पर्य नहीं है, सोने से तात्पर्य नहीं, यहाँ सोना का तात्पर्य है कि किस प्रकार से वो अपनी रोजी रोटी उस गोल्ड से, उस पैसे से, उस कूड़े करकट से मतलब है जो कलेक्ट करके बेचते हैं और जिससे उनके लिवलीहुड चलती है, रोटी मिलती है उन्हें। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। वह देखता हुआ बोला, दैट आई हैव नथिंग टू डू सो आई एम पिकिंग द रैक्स। मुझे करने को कुछ नहीं है, इसीलिए मैं कूड़ा इकट्ठा कर रहा हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लिवली, तो गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। मैंने कहा रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास होगा कि मैंने कितना खोखला सलाह दे दिया। हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, कितना खोखला सलाह मैंने दे दिया स्कूल जाने के लिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन द बिल्ड वन आई विल गो, और जब एक स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द अनिल एंड द साहब। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? यदि मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? हु आस्क? इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंगली। मैंने आधा मजाक करते हुए कहा कि यदि मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? राइटर ने जंग इज आस्किंग। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, पूरी तरह से मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बीत गए, उसके बाद दिखाई पड़ा। कौन? आफ्टर दैट ही सा टू साहब आलम, एंड साहब आलम कीम बाई रनिंग देयर, दौड़ता हुआ वहाँ पर आया। और जब आया, देन व्हाट हैपेंड? It takes longer to, sorry,
इज़ योर स्कूल रेडी, आकर पूछता कि आपका स्कूल तैयार हो गया, आपने कहा था यदि मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम पढ़ोगे, इज़ योर स्कूल रेडी। इट टेक्स लॉन्गर ए बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में समय लगता है। इससे मैंने कहा एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, मैं अपने इस वादे पर बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि मेरा ये मतलब नहीं था जो मैंने कह दिया था, बस मैंने तो जोकिंगली कह दिया था। बट प्रोमिस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ his bleak world. This line is very important. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन उसके इस धुंधले संसार में इसी तरह से वादे किए जाते हैं। The leader comes, the other people comes, that I will do for you, and they will going to do. They are going to make a school. They are going to build the new houses. They are going to provide their ration card. They are going to give him money. Such they are going to change their future. Such type of promises are made for them, but they are not kept. ऐसे तो कई वादे उन लोगों उनसे गरीबों से किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, ऐसे जान पहचान उसे महीने हो गए। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, उसने कहा कि उसका नाम साहिब आलम है। He does not know what it means. His name is साहिब आलम but he does not know it means. It is the irony. कितनी बड़ी आयरनी है कि कोई गरीब हो और उसका नाम भिखारी दास हो, और कोई भिखारी हो और उसका नाम करोड़ी मल हो। What is meaning of this verse? Name is the साहिब आलम. He announces. He does not know what it means. वह उसका मतलब नहीं जानता। If he knew its meaning, यदि उसका नाम जाने तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार का मालिक। साहिब आलम मीन्स इस संसार का मालिक। एंड दैट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज सर्चिंग द रैक्स इन द गार्बेज, दैट इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। व्हाट अ मोकरी ऑफ द नेम, व्हाट इज द आयरनी इन दिस नेम। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे विश्वास नहीं होगा कि अगर उसके नाम का मीनिंग बता दिया जाए। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने नाम से अनभिज्ञ वह गलियों में इधर उधर घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हुई अपीयर लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स, और वो तो नंगे बच्चों की जैसे पूरी फौज है, चिड़िया के समूह की तरह वह दिखाई देते हैं सुबह में। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। यूजली वी सी दैट द पीपल इन द सिटीज इन द अदर प्लेसेस वेयर दे पिक द रैक्स, and they usually they are seen in the morning time, they can't be seen afternoon. They collect their racks in the morning time usually. So these boys were also like this. They are seen in the morning time like the birds, and they disappear in the afternoon. Over the month I have come to recognize each of them. It passed 1 month, and the writer and his son recognized each and every one by their name and by their face to every boy. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने पूछा एक से, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ अलमारी से नीचे उतारती ही नहीं। ही आंसर सिंपली उसने कहा कि मेरी माँ है ना, वो अलमीरा पे रख देती है और उतारती नहीं। सो वी डिडंट वियर चप्पल। इवन इफ सी डिड ही विल, यदि वह उतार भी दे, देन व्हाट विल हैपन, उतार भी दे तो ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उसे फेंक देगा। इस डर में वह उसे उतारती नहीं। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, तब तक एक लड़का बोल पड़ा, अरे इसकी माँ उतार भी देना तो यह गायब कर देगा। वह लड़का बोला जिसके पैरों में जूते तो थे लेकिन मैच नहीं कर रहे थे, दो जूते 2 कलर के थे, 2 साइज के थे, तो उसने ऐसा कहा कि अगर इसकी माँ उतार भी देती है तो यह गायब हो जाए, गायब कर देता है, खो देता है। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक ऐसा लड़का बोला जिसने अभी अपने जीवन में कभी जूता नहीं पहना था, उसने कहा मैं जूता चाहता हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, अक्सर मैं गांव साइड में या घूमते हुए मैंने देखा कि बच्चों को देखा जो कि हमेशा नंगे पाँव रहते हैं। इन सिटीज़
शहरों में एंड विलेज रोड्स या गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लाइक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पैसे की कमी नहीं बल्कि एक परंपरा होगी, बिना नंगे पाँव ही रहें, बिना जूते के रहें, बिना चप्पल के रहें। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक तो ये भी बहाना है, एक भी एक्सप्लेनेशन है, अरे कौन चप्पल पहने, हम लोग पैदल ही चलते हैं, बिना जूते चप्पल के ही चलते हैं, ये हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है। कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य है कि उनकी यह दरिद्रता, उनकी गरीबी को छुपाने का मात्र है, एक बहाना है कि अरे नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, अरे हम नहीं पहनते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन टू explain a perpetual state of poverty. So I remember a story. The writer is going to give a story. I remember a story. A man from the Udupi once told me. उदीपी के एक आदमी ने एक कहानी बताई. As a young boy he would go to school past an old temple. वो स्कूल से जब स्कूल जाते थे तो एक मंदिर, एक व्यक्ति ने इन्हें निजंग को कहानी बता रहा है. उसने बताया था कि जब वह स्कूल जाता था, वह व्यक्ति जो कहानी बता रहा है, उदीपी का व्यक्ति, कि जब वह स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था. वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता पुरोहित थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. थोड़े समय के लिए वहाँ रुकता था और अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था. नाउ यू कैन इमेजिन, वी प्रे टू गॉड what? For the job, for the career, for the good marks, for the wealth, for the health. These things we pray to God. For these things we pray to God. But what you are saying that he was praying to God for a pair of chappal, a pair of shoes. Would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later I visited his town. और 30 साल बाद मैं उसके गांव को विजिट किया जो कहानी बता रहा था. And which was now drawn in a air of isolation. अब वह एकाकी हो गया था, वहाँ कोई रहने वाला नहीं था. लेकिन in the backyard where lived द न्यू प्रीस्ट, लेकिन वहाँ अब नया पुरोहित आ गया. नया पुरोहित था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर. अब वहाँ पर 30 साल बाद, नाउ ही इज टेलिंग द कंडीशन ऑफ दैट प्रीस्ट. एट दैट टाइम ही वॉज प्रेइंग फॉर द पेयर ऑफ शूज. दैट टाइम ही वॉज नॉट गेटिंग दैट थिंग, बट आफ्टर 30 years when he returned, when he went, and what he saw, there was changing in the life of the priest. There was the changing in the village also. A young boy dressed in a grey uniform. वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर थे. एक लड़का था जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था. बेयरिंग सॉक्स एंड शूज, अराइविंग पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. और वहाँ एक फोल्डिंग वाला बेड था, उस पर अपना स्कूल बैग रखा. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज. अब मुझे उसकी याद आती है कि वह लड़का जो कभी क्या करता था, प्रेयर किया करता था, प्रार्थना किया करता था एक जोड़ी जूते के लिए. द राइटर इज टेलिंग that once a man from Udupi told a story that in his village, where his father was a priest, in that temple, when he goes to the school, meanwhile on the way there was a temple, and he pray to God for what? For a pair of shoes. But now after 30 years the same thing has, the scenario has changed totally. There was a boy, after 30 years there was a boy, and what? He was wearing the shoes and uniform, and he has a school bag, everything. After 30 years, then he remembers the event, the story of that man who was telling. But the writer wants to tell that what? Let me never lose them. Finally got a pair, the goddess had granted his pair. Young boys like the son of the priest now wear shoes. वह व्यक्ति, वह पुरोहित, वह पंडित
जिसने उस समय प्रार्थना कर रहा था, चाहे अपने लिए किया हो या आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि हमें आने वाली पीढ़ियों को क्या मिले, जूते मिल जाएं, एक जोड़ी जूते मिल जाएं, इसलिए प्रेयर किया हो, उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। द प्रेयर ऑफ दैट बॉय, दैट प्रीस्ट बॉय वाज हु वाज प्रेइंग टू गॉड फॉर द पेयर ऑफ शूज दैट वाज एक्सेप्टेड बाय गॉड गॉडेस। वो देवी ने क्या कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वेयर शूज और शूज, but many other like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. The fact is that, the point is here, that there are some boys in the street of Anizang, who are the shoeless. It means the god or goddess, they are only listening the prayer of only priest, only rich people, but they are not listening the prayer of these rag pickers, these poor boys who are suffering, and who are suffering from poverty, who have lackness of shoes and basic things. So this was very important stanza. This was, who tells that only God listen to whom? Only God listen to the rich people, according to as it is written, as it can understand. My acquaintance with the barefoot rag picker leads me to सीमापुरी। इस पहचान ने, इन बच्चों के पहचान ने मुझे कहाँ लेकर मुझे गए ये बच्चे? सीमापुरी। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और यह कहाँ पड़ता है प्लेस सीमापुरी? दिल्ली के सीमावर्ती भाग था ये। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, वहाँ से दूरी पर था। मेटामॉर्फिकली, जो कह सकते हैं वहाँ से सटा हुआ दूरी पर था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। ये कहाँ से? 1971 में कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। साहब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहब का परिवार भी इन्हीं में से था, जो 1971 में, पहले यह पाकिस्तान हुआ करता था, फिर उसके बाद इसे स्वतंत्र कराया गया, और फिर यह, इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। फिर उस बांग्लादेश से कई माइग्रेंट, कई लोग कहाँ पर आए? भारत में आए, और उसी समय में साहब की फैमिली भी उसी में से एक थी। सीमापुरी वास देन आ विल्डरनेस, पूरा निर्जन था सीमापुरी उस समय। इट स्टिल इज, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, या मिट्टी का बना हुआ, कीचड़ का बना हुआ, विथ रूप्स ऑन अ टिन और द टारपोलिन, टिन का छत बना हुआ, तिरपाल का छत बना हुआ है। डिवाइड ऑफ द सीवेज, जहाँ से नालियाँ गुजरी हुई हैं, और ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पानी बह रहा है, ड्रेनेज है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर इस सीमापुरी के यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और यहाँ पर लगभग 30 साल तक वो लोग बिना किसी पहचान के रह गए हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, उनके पास राशन कार्ड था जिससे उनका नाम वोटर के लिए था, वोटर लिस्ट में था। एंड enable them to buy grain, food is more important for survival than an identity, जिससे वह अनाज खरीदते थे। and food is more important for them to in comparison of identity, पहचान उनके लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, उनके लिए नाम जान पहचान ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरतमंद था, ज़रूरत की चीज़ थी। इसीलिए राशन कार्ड उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। वह राशन कार्ड जिससे उन्हें राशन मिल सके, उनका पेट भर सके, इसलिए उनके लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं उनके लिए भोजन था। If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. If at the end of the day, यदि दिन के अंत तक हम अपने परिवार को, यानी शाम को हम भोजन दे सकते हैं, अगर मिल जाए हमारे परिवार को, और हमारे परिवार का कोई सदस्य भूखा या पेट दर्द से न सोए, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन।
say a group of women in the tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. मैंने जब उस औरत से पूछा जो साड़ी पहनी हुई थी कि आप लोगों ने अपना हरा भरा लैंड और घर छोड़कर आप लोग यहाँ पर क्यों चले आए. देन वेयर एवर दे फाइंड फूड, वहाँ भी तो वह भोजन पा सॉरी बट रिप्लाई वाज दैट वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको भोजन मिलता दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जहाँ भी उनको भोजन मिलता वहीं पर अपना तंबू गाड़ देते और वहीं उनका एक प्रकार का घर हो जाता, एक प्रकार का उनका घर हो जाता है. Wherever they find food, they pitch their tent that becomes transit homes. Children grow up in them, और बच्चे उसी में बड़े होते हैं. Becoming parent in survival, और आगे चलकर माता पिता के साथ काम करते और जीविका में हाथ बटाते. And survival in सीमापुरी means rag picking. Survival in the सीमापुरी means rag picking. It become a synonyms. यह एक पर्यायवाची बन गया था कि सीमापुरी का नाम लो तो अचानक माइंड में आ जाता था रैग पिकिंग. It means it is a synonyms of the rag picking. That is the second name of the rag picking is the सीमापुरी. वहाँ पर रैग पिकर लोग इतना रहते थे कि उसका नाम यह कह सकते थे कि सीमापुरी किससे भरा हुआ था, रैग पिकर से भरा हुआ था. तो थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, और यह एक प्रकार का कला बन गया था. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए यह गार्बेज सोने के समान था. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोटी थी. आ रूफ ओवर देयर हेड, और यही इनका छत था. इसी के माध्यम से उनका छत, उनका घर और उनकी रोजी रोटी चलती थी. इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, भले वह छत लीक कर रहा हो लेकिन फिर भी एक बच्चे के लिए बहुत था. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो इस कूड़े करकट में तो 10 के नोट मिल जाते हैं. साहब ने कहा. हिज आइज लाइटिंग अप, जब कहा कि कभी कभी 10 के नोट मिल जाते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ गई. व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, यदि तुम्हें एक चांदी का सिक्का मिल जाए गार्बेज में तो क्या तुम रुक जाओगे, बंद नहीं कर दोगे गार्बेज कलेक्ट करना. फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, लेकिन फिर उम्मीद जग जाती है और पाने की. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. यहाँ प्रतीत होता है कि इन बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ अलग था, किससे, वहाँ के रहने वाले गार्जियन की अपेक्षा इन बच्चों का मतलब डिफरेंट था. इनका मीनिंग गार्बेज का अलग है, और इनका तो इन्जॉय है, कलेक्टिंग है. 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ है, दे आर कलेक्टिंग फॉर 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ दे कैन फाइंड समटाइम्स, बट फ्रॉम दैट गार्बेज देयर पेरेंट्स सोल्ड दिस गार्बेज एंड कलेक्ट मनी फॉर देयर सर्वाइवल. फ्रॉम वाट मीन्स पेरेंट्स. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ द रैफ्ट इन वंडर, बच्चों के लिए तो आश्चर्य की बात है. कभी कभी 10 का नोट मिल जाता है, 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, कुछ मिल जाता है उसमें ओनली. और फॉर द एल्डर्स इट मीन्स द ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए इसका मतलब सर्वाइवल है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. एक सुबह मैंने किसे देखा, साहब को देखा. कहाँ पर था वह, नेबरहुड में, बगल में खड़ा हुआ था पड़ोस में क्लब के पास. वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, 2 आदमियों को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे. दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे. व्हाट साहब सेड दैट आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने कहा मुझे गेम बहुत पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और मैं आनंद उठाता हूँ यहाँ पर देखने का. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई नहीं रहता ना तो मैं अंदर चला जाता हूँ. ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और मैं जाता हूँ तो गेट कीपर मुझे झूला झूलने की परमिशन दे देता है. साहब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहब भी टेनिस शूज ही पहना था. दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शर्ट, उसके शर्ट और पैंट पर वह अजीब लग रहा था. समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि किसी ने मुझे दे दिया है. ही सेज इन दिस मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने कहा कि किसी ने मुझे दे दिया ये.
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ऐसा लगता है कि किसी धनी लड़के का यह शूज है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज अ होल इन वन ऑफ देम, शायद किसी एक जूते में थोड़ा सा होल हो गया था, किसी धनी घर के लड़के का यह जूता है, इसलिए उसने डिस्कार्ड करके दे दिया, किसे, साहब को दे दिया था। डस नॉट बॉदर हिम, लेकिन उसके लिए होल का क्या मतलब, उसे तो मिल गया, उसके लिए दैट वॉज सेटिस्फाइड। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, जो नंगे पाँव चलता था उसे होल वाला जूता मिल जाए, व्हाट्स मैटर, नथिंग। इवन शूज विद अ होल इज़ द ड्रीम कम टू ट्रू, लेकिन उसके लिए तो एक होल वाला जूता मिल जाना ही सपना सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटरेस्टली इज़ आउट ऑफ हिज रेंज, लेकिन वह जो गेम खेल रहा था वह उसकी पहुंच से, उसकी पकड़ से बहुत परे था। सो द लास्ट पैसेज ऑफ दिस पार्ट, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह वह मिल्क बूथ पर था, जहाँ दूध मिलती थी, वहाँ मिलता था, वहाँ के लिए वह था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक कनिस्टर था, पात्र था जिसमें दूध रखा जाता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं उस सड़क के उस पार, वहाँ उस तरफ, क्या, वहाँ पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन दिस डिस्टेंस, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए बताया कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ चाय की दुकान में। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे सभी टाइम का भोजन और 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह जॉब पसंद है, क्या यह काम पसंद है उसे। आई आस्क हिज फेस, जब मैंने वह पूछा तो उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, ओ केयर फ्री लुक, जो पहले लापरवाह, बेपरवाह, निडर, किसी प्रकार का चिंता नहीं था, वो वाला चेहरा उसे नहीं दिखाई दे रहा था, वो खो गया था उसका वह। द स्टील कनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वह कंधों पर जो प्लास्टिक का बैग लिया रहता था, जिसमें गार्बेज पड़ा रहता था, जिसमें प्लास्टिक बॉटल एटसेट्रा जो वह कलेक्ट करता था, वह उसे अधिक वजन नहीं लगता था किसकी अपेक्षा, आज के इस दूध के कनिस्टर की तरह। आज दूध का यह कनिस्टर उसे बहुत भारी लग रहा था अपने उस बैग की अपेक्षा। क्यों? ही इज़ गोइंग टू टेल दैट द बैग वाज हिज, क्योंकि वह बैग उसका निजी था, वह अपना मालिक था उस बैग का, और वह अपने अकॉर्डिंग काम करता था, जब चाहता था रैग पिकिंग करता था, जब चाहता था बंद कर सकता था। ही वॉज नॉट डूइंग द वर्क अंडर एनी वन, ही वॉज हिज ओन मास्टर एट दैट टाइम। बट नाउ व्हाट हैपन, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन यह कनिस्टर उस चाय वाले का है, उस चाय के दुकान वाले का है, उस चाय के दुकान के मालिक का है, जिसके अंडर में काम कर रहा है, कौन, साहब। सो इट इज़ सो हैवी in comparison of that plastic bag, because plastic bag's owner was Sahib Alam, but now the owner of this canister is different. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, वह तो अब नौकर हो गया। जब वह खुद रैक पिकिंग करता था, खुद वह कलेक्ट करता था, तब तो वह खुद का मालिक था, अपने अकॉर्डिंग काम करता था। बट नाउ टुडे ही बिकम अ servant, he is working under the tea shop, even he is getting 800 rupees and all my meals, but he is not happy, he is not satisfied, because he has to work, as we can see that in the shop of tea shop, a chotu chai lana, a chotu bring that, so chotu do that, in that he was like a servant. But when he was working, he was rag picking, he has a plastic bag, that plastic bag was his own and he was his owner. So this is the chapter first part of the last spring by Ernest Jung, Stories of Stolen Childhood. The first part, sometimes I find a rupee in the garbage, and this is the story of Sahib Alam, and we would see that 2 or 3 points. That firstly, the promises are not kept.
for the poor people. We see it firstly that we saw that Ernest Young said that if I open a school, will you come? It was a type of joke, half jokingly it was said by the writer, but thus such type of jokes are make with the poor people. These promises which are made for for their betterment, for their better future, those promises are not kept for the poor people who are living. Such we can see in the election time, election period, the leaders comes and they promise for doing betterment of the poor people, such people like the Sahib Alam, but there is no changing in the life of. After that, we saw that story of that priest Udipi. He was telling that that small boy who was praying for a pair of shoes, he got the pair of shoes or not, but after 30 years his generation got, not only they got the pair of shoes, they got the uniform, they have school bag, everything they have. It seems that goddess or god of the temple, they listen, they granted the prayer of that boy, that priest boy, and now they have these things. But nowadays, even these children, these poor boys, prayer are not granted by the god or goddess. They are not getting these things. These are the basic things which are not. They are not getting these basic things. And after that, the for tennis shoes we discussed, we saw that about he is talking the tennis shoes. For him, that the shoes in which there is a hole, that is a dream of such type of boys who are bare feet, who those who have not the even a chapel, even a shoes, they got a hole, they got a shoes in which there is a hole. It is like a dream which comes like a true. We saw that any rich boy who reject these shoes because of a hole in that shoes, and for them it is like a dream that is going to be fruitful, that is going to be fulfilled. And after that, that is the important thing, that Sahib is no more his own master. Now he is working, he is not satisfied, he is not feeling good, he is not satisfied with this, that he is working at a tea shop. He is getting 800 rupees and all meals, but he is not satisfied. This canister in which he was carrying milk, for milk he went at the milk booth at that day. When the writer asked that, do you like this job? It shows that he was not satisfied in this job because he is not his own master now. So the canister is heavy and his plastic bag was so light at that time. I hope that you will be able to understand the whole lesson line by line with the description and with the full explanation. So in the next part, that is I want to drive a car, that is the next part of this chapter. We will study in the next video. Okay, thank you for watching.